Hello everyone. I welcome you again in this video. In this video, basically till now we have covered up to the 10th problem and means 3 videos. And in this video, we are starting from the 11th onwards. These the problems that we are going to discuss in this video are the wonderful problems, and whatever the concept that we have not discussed till now, we are going to discuss along with the problems. Okay, so let's start with the first problem, means that is problem number 11 that has been asked in gate 2007, that is conducted by IIT Kanpur. Okay, so first, so in this problem, in orthogonal turning, that is turning is given to you, and whatever the problems are there that generally we deal in the turning, that here we have to convert it into the orthogonal. Okay, so the meaning of that orthogonal turning, okay, of low carbon steel with principal cutting edge angle is 90 degree. The meaning of that is lambda. Okay, we also call this lambda as an approach angle, and here as turning it is, so that's why we are considering it as a principal cutting edge angle. Okay, the main cutting force is 1000 Newton, so means the value of FC is given to you. Okay, whatever the value that we considered in the main till now, whatever we have considered the value of FC means in the orthogonal cutting, so that's the only thing, that is FC 1000 Newton, and the feed force is 800 Newton, so the value of FF is given to you, so that is 800 Newton. Okay, the shear angle is 25 degree, phi is given to you, and orthogonal rake angle is 0 degree, means value of alpha is 0 degree. Okay, employing Merchant's theory, we have to evaluate the ratio of the frictional force to the normal force acting to the cutting force, to the cutting of the tool. Okay, means perpendicular to that. So what we have to find out, that value of F by N. Okay, and also mention that we have to employ the Merchant's theory. So in terms of the if we convert, मतलब अगर हम इसको convert करते हैं in terms of FC and FT, then this will be like FC sine alpha plus FT cos of alpha upon FC cos alpha plus FT, sorry, minus FT साइन अल्फा. ठीक है, ये हम फॉर्मूला पहले भी डिराइव कर चुके हैं, इस वजह से मैं नहीं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, जैसे आई एम राइटिंग द फॉर्मूला. ओके, तो इसमें आपको एफसी की वैल्यू तो गिवन है, बट एफटी गिवन नहीं है, दैट इज थ्रस्ट फोर्स इज नॉट गिवन टू यू. ओके, अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ. ठीक है, तो अल्फा की जब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 0 कोस 0, हियर कोस 0 एंड साइन 0. तो साइन 0 कितना होता है 1, सॉरी 0. ओके, एंड कोस 0 कितना होता है 1. तो ऊपर में क्या बचेगा, दैट इज एफटी, और नीचे क्या बचेगा, दैट इज एफसी. तो ओवरऑल आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एफटी बाई एफसी की. एफसी वैल्यू तो हमें गिवन है, दैट इज 1000 न्यूटन, बट एफटी इज नॉट गिवन टू अस. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट दैट एफटी विद व्हाटएवर द फोर्सेस दैट इज गिवन टू अस. तो हम लोग वो थोड़ा इवैल्यूएशन देख लेते हैं. ठीक है, तो हम लोग एक कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल रोड थी, उसको इस पोजीशन तक उसका मशीनिंग हो चुका है. ठीक है, ओके. नाउ फीड वी आर प्रोवाइडिंग इन दिस डायरेक्शन. Okay, so the frictional force, sorry, feed force will be in this direction, horizontal. Okay, this is feed force, FF, and there is another term that is radial force. So radial force is perpendicular to that. Okay, feed force. So this is FR. We are representing with the FR. Now this is basically the our tool. Okay, so normal to that, side cutting edge, there will be the thrust force, means component of the thrust force will be in this direction. Okay, if this angle, ये जो एंगल है आपका हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज लेम्बडा. ओके, तो अगर मैं इसको इस तरह से बना देता हूं, ठीक है, आपका ये कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है थ्रस्ट फोर्स, तो ये 90 हो गया, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस लेम्बडा. ठीक है, और अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ,
ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना बच जाएगा, लेमड़ा मीन्स मीन्स आपका जो ये जो है दैट इज एफ आर रेडियल फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस इज थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, ये आपका है थ्रस्ट फोर्स दैट इज एफ टी, और ये वाला जो एंगल है दैट इज लेमड़ा। ओके, तो अब आपका क्या है कि एफ टी का दिस इज लेमड़ा। ओके, तो एफ टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इन आर डायरेक्शन में, तो एफ आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ टी cos ऑफ लेमड़ा। ओके, ये 90 माइनस लेमड़ा है, तो component of ft in direction of ff, so this will be feed force equals to ft into sin लेमड़ा। ये दोनों कन्वर्जन आपको याद रखना है कि जब भी आपको अगर रेडियल फोर्स दिया है और उसको थ्रस्ट फोर्स में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आपको फीड फोर्स दिया है और उसे हमें थ्रस्ट फोर्स में कन्वर्ट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है, आपको फीड फोर्स गिवन है दैट इज 800 न्यूटन। ठीक है, तो 800 दैट इज फीड फोर्स, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ft, so this ft will be equals to ff, that is frictional force upon sine lambda. Now ff feed force, sorry, this is feed force not frictional force, so this ft that is thrust force equals to ff, that is 800 divided by sine, what is the value of lambda, that is principal cutting edge, that is 90 degrees, so 90 sine 90 is equals to 1, so ft will be equals to 800 Newton. What we have to do, just put the value in this formula. So this will give you this F by N will be equals to Ft by Fc. Okay, so the value of Ft is 800 and the values Fc is 1000 Newton. Okay, so this will give you 0.80. Okay, so the option will be B. या एक बात आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो कटिंग फोर्स होता है इसमें बेसिकली टर्निंग के टाइम पे तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज मेन कटिंग फोर्स, दैट इज सेकंड इज फीड फोर्स एंड थर्ड इज रेडियल फोर्स। तो ये दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्हीं को हम थ्रस्ट फोर्स में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ये जो मेन आपका जो ये यहाँ पर एफसी है, सेम एफसी इज एप्लीकेबल जब हम ऑर्थोगोनल कटिंग करते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं एफसी का। ठीक है, कन्वर्जन सिर्फ होगा इन टर्म्स ऑफ एफ टी ऑफ एफ एफ एंड एफ आर। ठीक है, एफ सी एज इट इज रहेगा, तो उसमें कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Okay, so in this problem, in orthogonal turning of a low carbon steel bar of diameter is this, with the uncoated carbide tool, the cutting velocity, that is value of v is given to you, that is 90 meter per minute. The feed, that is 0.24 mm per revolution, and depth of cut, that is small d, is given to you. Okay, the chip thickness obtained is 0.48, so the value of tc is given to you. Okay, if the orthogonal rake angle is 0, means value of alpha is 0, the principal cutting edge angle is 90 degree, means value of lambda is 90 degree, then we have to evaluate the shear angle, means what is the formula for that, that is 10 phi equals to r cos of alpha upon 1 minus r sin alpha. ठीक है, आपको जो r है that is again chip thickness ratio, so this is t by tc. टीसी आपको गिवन है लेकिन टी गिवन नहीं है। ठीक है, और अल्फा जो है दैट इज 0 डिग्री। ओके, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, चूंकि उस 0 है तो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, दैट इज आर कॉस ऑफ अल्फा दैट इज 0 डिग्री अपॉन 1 माइनस आर साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई, 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1। ठीक है, तो 10 फाइव इक्वल्स टू आर cos 0 कितना होता है, 1, तो टोटल 10 फाइव इक्वल्स टू कितना हो गया, आर। मींस आपको यहाँ पर t बाई टी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दैट इज इक्वल टू 10 फाइव, तो वहां से फाइव आपको फाइंड आउट करना है, बट टी सी इज गिवन एंड बट टी इज नॉट गिवन। ओके, तो इसमें बोला क्या गया है कि दैट इज ऑर्थोगोनल टर्निंग इज देयर। ओके, तो
मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि जब हम टर्निंग करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज फीड एंड दिस इज डेप्थ ऑफ कट। ओके, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन ऑर्थोगोनल टर्निंग, ऑर्थोगोनल, देन this is basically the width we considered as a width, and this is uncut chip thickness, okay, t। now आप जब एंगल जब कैलकुलेट करते हैं तो ये जो एंगल आपको मिलता है दैट इज लेमडा, बिकॉज जस्ट नाउ वी हैव सीन इन द लास्ट प्रॉब्लम, एंड दिस इज 90 माइनस लेमडा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कन्वर्ट जो दो चीजें साथ में ले रहा हूँ दैट इज एफ और टी। ओके, तो ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल ट्राइंगल है इसमें दिस इज थीटा, सो इफ दिस इज थीटा देन दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो cos थीटा मींस cos 90 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका परपेंडिकुलर पर, सॉरी बेस कितना है यहाँ पर t, और हाइपोटेनियस क्या है f। ओके, तो cos 90 माइनस लेमडा कितना हो जाएगा साइन लेमडा। ओके, तो यहाँ पे चाहिए मुझे t की वैल्यू, तो t कितना आ जाएगा f इंटू साइन लेमडा। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा जो कन्वर्जन है दैट इज इन बिटवीन d एंड b। ओके, अब अगर ये जो एंगल है आपका दिस इज लेमडा, ओके, दिस इज लेमडा एंड दिस इज 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस लेमडा। ठीक है, अगेन अब मैं कंसिडर कर रहा हूं इस पूरे ट्राइंगल को, इस पूरे ट्राइंगल को, तो ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल में ये क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो अगेन बेस और हाइपोटेनियस है तो कोस, सो कोस 90 माइनस लेमडा इक्वल्स टू बेस दैट इज d अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज b। सो अगेन दिस इज कोस 90 माइनस लेमडा, सो दिस इज साइन लेमडा। मुझे चाहिए यहाँ पे b की वैल्यू, सो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा d अपॉन साइन लेमडा। प्लीज ये दोनों कन्वर्जन आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस प्रॉब्लम में हमें सिर्फ इसकी जरूरत है, लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने ये करवाया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या है, हमें चाहिए टी, सो टी अनकट चिप थिकनेस इज इक्वल्स टू एफ साइन लेमडा। तो वैल्यू रख दीजिए, टी इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितनी है 0.24 mm पर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो बट चूंकि अब कन्वर्ट्स हो चुका है तो mm में ही रहेगा। ठीक है, इनटू साइन लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, प्रिंसिपल कटिंग एज है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए 90 डिग्री, साइन 90 अगेन 1, तो टी कितना हो जाएगा 0.24। ठीक है, तो 10 फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टी दैट इज 0.24 अपॉन टीसी, टीसी की वैल्यू कितनी है 0.48। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू 0.50, और 10 इनवर्स जब करेंगे तो 5 इक्वल्स टू यू विल गेट द वैल्यू व्हाट आई एम गेटिंग इज it is 26.56 degree। Okay, so this option will be B। Okay, this was a wonderful problem। बाय द वे ऐसा प्रॉब्लम हमने एक बार पहले कर चुके हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पे कन्वर्जन नहीं बताया था। कन्वर्जन इसलिए बताया क्योंकि नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Okay, so the problem is asked in GATE 2008 by IISc Bangalore। ऑर्थोगोनल टर्निंग है, इसीलिए मैंने कन्वर्जन कराया है। ठीक है, is performed on a cylindrical workpiece with a shear strength of 250 megapascal। so यहाँ पर हम shear strength that is tau से represent करते हैं, that is 250 megapascal। ओके, मेगापास्कल को मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, mm स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, the following condition is given to you, that is cutting velocity means v that is 180 meter per minute, value of feet f is given to you that is 0.20 mm per revolution, depth of cut is given to you small d, chip thickness ratio means directly the value of r is given to you। Okay, orthogonal rake angle is 7 degrees, so the value of alpha is given to you। Apply Merchant's theory analysis for that, and first of all we have to evaluate that shear plane angle means shear angle we have to find out, and then shear force। so shear angle find out करने के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है, that is tan phi equals to r cos of alpha upon 1 minus r sin alpha, and सब कुछ इस प्रॉब्लम में दिया भी है।
ठीक है, तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करिए। आर की वैल्यू कितनी है 0.50 इंटू कॉस ऑफ अल्फा दैट इज 7 डिग्री अपॉन 1 माइनस आर दैट इज 0.50 इंटू साइन 7 डिग्री। ओके, तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो मुझे वैल्यू मिल रही है यहाँ पर दैट इज इन न्यूमरेटर दैट इज 0.49627 अपॉन जो डिनोमिनेटर में है दैट इज 93906। ठीक है, तो टोटल वैल्यूज है दैट इज 0.5284। जब 10 इनवर्स करेंगे तो यहाँ पर फाई की वैल्यू जो मुझे मिल रही है दैट इज 27.85 डिग्री। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज गिवन है तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 28 डिग्री कंसिडर कर लेता हूँ। अब अगर मुझे कभी जरूरत पड़ेगी फाई की तो मैं उसको 28 ही कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी या डी में से कोई एक हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कौन सा है, तो डिपेंड करेगा शेयर फोर्स की वैल्यू पे। नाउ शेयर फोर्स एफ एस इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं शेयर स्ट्रेस लिखना चाहूँ तो दैट इज इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस इनटू शेयर एरिया। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द शेयर जोन। अब अगर हम लोग सिंपल सा अगर ज्योमेट्री देखें, ठीक है, तो ये जो है दिस इज चिप, दिस इज टूल एंड दिस इज वर्क पीस। ये जो है आपका शेयर जोन है, सॉरी दिस इज योर शेयर जोन। ओके, तो ये जो थिकनेस है दैट इज शेयर थिकनेस। ओके, और ये जो है आपका दिस इज अनकट चिप थिकनेस मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। अब आपका जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है इन द शेयर जोन दैट इज जो इसकी विड्थ है, ठीक है, जो इसकी विड्थ है दैट इज बी हम कंसिडर कर लेते हैं, एंड जो इसकी थिकनेस है दैट इज बी इंटू टी एस। तो दैट इज एफ एस इक्वल्स टू टाउ इंटू बी इंटू टी एस। बस बट यहाँ पर क्या है, आपको ना तो बी गिवन है और ना ही टी एस गिवन है। पहले क्या करते हैं हम लोग, टी एस को कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है दिस इज टी, और ये वाला एंगल कितना हो गया फाई। ओके, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो साइन फाई इक्वल्स टू टी बाई टी एस। तो टी एस कितना हो जाएगा यहाँ से टी अपॉन साइन फाई। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे रख देता हूँ दैट इज टाउ इंटू बी इंटू टी अपॉन साइन फाई। ठीक है, अब यहाँ पर ना तो बी गिवन है, बिट्स भी गिवन नहीं है, और यहाँ पर आपको टी भी गिवन नहीं है, दैट इज अनकट चिप थिकनेस भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो क्या करें हम लोग, चूंकि ये टर्निंग का प्रॉब्लम है तो लास्ट टाइम जो लास्ट न्यूमेरिकल है जिसमें वो मैंने आपको कन्वर्जन कराया है कि टी जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज एफ इंटू साइन लेमड़ा। ठीक है, और जब आप इसको या जब इसको कन्वर्ट करेंगे, जब बी को कन्वर्ट करेंगे तो बी इक्वल्स टू डी अपॉन साइन लेमड़ा। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज को क्या करिए, बी की वैल्यू और टी की वैल्यू को यहाँ पर रखिए इस फॉर्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका दैट इज टाउ इक्वल्स टू एफ एस, सॉरी एफ एस इक्वल्स टू टाउ इंटू बी इंटू टी अपॉन साइन फाई था। ठीक है, बी की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डी दैट इज डेप्थ ऑफ कट डी अपॉन साइन लेमड़ा, और टी की जो वैल्यू है दैट इज एफ इंटू साइन लेमड़ा। ठीक है, नाउ एफ एस इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ इंटू बी, बी की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे दैट इज डी अपॉन साइन लेमड़ा, और टी की वैल्यू दैट इज एफ इंटू साइन लेमड़ा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट अपॉन साइन फाइव। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ इंटू डी इंटू एफ अपॉन साइन फाइव। ध्यान रखिएगा प्लीज ये फॉर्मूला। ओके, जब कन्वर्जन करते हैं टर्निंग में तो यही आती है, ये इक्वेशन आती है। ठीक है, तो एफ एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से टाउ दैट इज 250 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू डी। डेप्थ ऑफ कट आपको गिवन है दैट इज 3 mm, सो कीप इट एज इट इज, एंड एफ इज 0.20 mm per revolution, so also keep it as it is. Okay, so this is 20 अपॉन साइन फाइव। साइन फाइव की वैल्यू कितनी है, फाइव की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अभी दैट इज 28 डिग्री। ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू दैट इज 319.508 न्यूटन। सो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल्स टू 320 न्यूटन। ओके, सो ऑप्शन विल बी डी, 28 डिग्री एंड 320 न्यूटन। ओके, so let's move on the next part.
Okay, in the next part, we have to calculate the value of cutting force and the frictional forces. Okay, so first of all, हम लोग क्या करते हैं इसमें FC फाइंड आउट करते हैं, मतलब कटिंग फोर्स जो है दैट इज FC और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है दैट इज योर्स F. ओके, तो पहले हम FC फाइंड आउट करते हैं. तो बट FC कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें क्या है कि मर्चेंट्स थ्योरी एनालिसिस हमें यूज करना है. तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे छोटा सा मर्चेंट सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ. ट्राई समझने की कोशिश करना कि ये पूरा एक सर्कल है. ठीक है, ये आपका FC. ठीक है, ये जो है दैट इज योर्स FS shear force. ओके, एंड ये आपका कुछ FT होता है दैट इज thrust force and this is your resultant. ओके, अगर हम यहाँ पे कुछ एंगल लेना चाहें तो हम लोग फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शनल फोर्स ले सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी पूछा है. और ये जो है आपका दैट इज नॉर्मल टू फ्रिक्शन. बीटा प्रेजेंट एंगल भी रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं. ये आपका बीटा होता है, ये आपका फाई. ये हमने एक प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया था तो आया था बीटा माइनस अल्फा. ये एंगल है आपका 90 माइनस बीटा. और ये वर्टिकल के साथ जो ये वाला एंगल होता है मतलब इसके परपेंडिकुलर, दिस इज अल्फा. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे एफएस को मैं इन टर्म्स ऑफ लिखूंगा आर, दैट इज रिजल्टेंट. ओके, तो एफएस ये वाला एंगल है फाई, ये वाला एंगल है बीटा माइनस अल्फा. तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा. तो एफएस इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा. इन अगर मैं आर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं दैट इज एफएस अपॉन कोस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा. ठीक है, दूसरा जब FC, ये जो FC है आपका, उसको भी मैं रिजल्टेंट की टर्म में लिखूंगा. तो FC इक्वल्स टू हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, बीटा माइनस अल्फा. सो दिस इज R cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा. ठीक है, तो यहाँ से R आ जाएगा दैट इज FC अपॉन कोस बीटा माइनस अल्फा. तो दोनों वैल्यू रिजल्टेंट की हैं तो दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ. इक्वल जब करेंगे तो ये वैल्यू जो रहेगी दैट इज FC cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा equals to fs upon cos of phi plus beta minus alpha. ठीक है, तो यहां से मुझे fc की वैल्यू मिल जाएगी. fc equals to कितना हो जाएगा, fs into this value upon this value. तो डायरेक्टली मैं वैल्यू ही पुट कर देता हूं. ठीक है, तो fs की वैल्यू कितनी है, कितनी कैलकुलेट की हमने, दैट इज 320. ओके, इनटू cos बीटा. अब बीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम लोग बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो फॉर्म मर्चेंट्स थ्योरी अगर लगा रहे हैं तो 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है. ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 28 प्लस बीटा माइनस 7, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 7 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू मिलेगी दैट इज 41 डिग्री. ओके, तो ये जो बीटा की वैल्यू है यहाँ पे पुट करिए, 41 माइनस अल्फा दैट इज 7 डिग्री अपॉन कोस फाई दैट इज 28 प्लस बीटा दैट इज 41 माइनस 7. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरे को तो एफसी की जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी मुझे, जो मिल रही है दैट इज 565. ओके, 565 न्यूटन. ओके, तो ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है, 565 न्यूटन तो एक में ही है. मतलब मैं अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट ना भी करता हूं तब भी मैं इसको डायरेक्टली टिक कर सकता हूं. लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे, मान लीजिए कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मुझे एफ की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अब एफ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो एफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो अभी मैंने मर्चेंट सर्कल डायग्राम बनाया था, आप उससे प्लीज देख लीजिएगा कि जो एफ की वैल्यू आएगी, मैं इन टर्म्स ऑफ रिजल्टेंट लिख रहा हूं. तो एफ की वैल्यू आएगी आर, बिकॉज ये आप ये आपका एफ था, ये आपका आर, दोनों के बीच का एंगल कितना था, 90 माइनस बीटा. ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर कॉस ऑफ 90 माइनस बीटा. तो साइन बीटा लिख सकता हूं मैं इसको. आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, एफ अपॉन साइन बीटा. ठीक है, जब इसको इक्वल करूंगा एफ एस के, जो एफ एस की वैल्यू थी दैट इज मतलब इन टर्म्स ऑफ एफ एस थी आर की वैल्यू दैट इज एफ एस अपॉन कॉस ऑफ कितना था,
फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर सकता हूं, तो यहां से f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ एस इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस ऑफ फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ एस दैट इज 320 इंटू साइन बीटा कितना आया था 41। ओके, कॉस फाई दैट इज 28 प्लस 41 माइनस 7। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 380 आना चाहिए, लेकिन ये 380 ना आके मेरे जो वैल्यू मुझे मिल रही है दैट इज 447 न्यूटन मिल रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं आंखें बंद करके आंसर लगा देता तो शायद ये गलत हो सकता था। ठीक है, बट इसमें क्या है कि आप कैसे भी करके अगर f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, चाहे और कोई फॉर्मूलाज अगर आप लगाना चाहें या और कोई ट्रिक लगाना चाहें, बाय द वे है नहीं, फिर भी अगर आपको कोई मिल जाती है तो अगर आप लगाना चाहें तो वैल्यू यही आएगी, या फिर हो सकता है 445 या 450 की रेंज में वेरी करे। ठीक है, 445 और 450 की रेंज में वेरी करे, बट 381 तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये 381 है क्या। अब आप क्या करेंगे कि इसमें अलग अलग फोर्सेस जो होते हैं आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट चूंकि मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि एफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, तो एफ टी इन टर्म्स ऑफ आर दैट इज आर, उसकी वैल्यू एफ सी कितना था, कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, तो एफ टी कितना हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, तो दैट इज साइन बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो गई, एफ टी अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा। इसको मैं इक्वल कर रहा हूं दैट इज एफ एस कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से मैं एफ टी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो एफ टी इक्वल्स टू हो जाएगा 320 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा दैट इज 41 माइनस 7 अपॉन cos फाई दैट इज 28 प्लस 41 माइनस 7 डिग्री। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू जो मिल रही है दैट इज 381.15 न्यूटन। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 381 भी कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए कि 381 जो आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई है वो बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स की नहीं है, वो यहाँ पर वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज थ्रस्ट फोर्स। और कभी भी आप ये सोचिए कि इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कटिंग फोर्स कंपोनेंट किसी और का है और फ्रिक्शनल फोर्स कंपोनेंट किसी और का है, तो वो साथ में नहीं पूछा जा सकता। हो सकता है कुछ करेक्शन मिस्टेक हो गई हो, लेकिन ये जो वैल्यूज पूछ रहे हैं दैट इज कटिंग फोर्स मींस वैल्यू ऑफ एफ सी एंड फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज मतलब जो थ्रस्ट फोर्स है दैट इज एफ टी। ठीक है, दो चीजें हो सकती है, या फिर या तो यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स रहा होगा, तो एज पर द आंसर मैं यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ही है तो मैं इसकी वैल्यू 381 ना करके 447 लिख सकता हूँ। दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों में से एक करेक्ट है। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी आर स्टॉपिंग अप टू हियर, इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम द 14th प्रॉब्लम ऑनवर्ड्स। सो थैंक यू सो मच गाइस।